हेलो। Yes, hello Vinita. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम, निशी एक्चुअली ज्वाइन करना चाह रही है, आप उसको ले लीजिए। Nishi, यस मैम। but there is no student named Nishi in the waiting room. Just 1, 2, 3, 4, 5. Is that? यस मैम। Yes, Nishi. Miss Vinita, I'm audible. Miss Vinita, Nishi, is I'm audible. Unmute yourself. मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes, Nishi, next time enter with your name or roll number only, not with this 1, 2, 3, 4, 5. Okay, make an ID with your name only. Okay, ma'am. Yes, Nishi, are you speaking something? Vinita, just tell me I'm audible. यस मैम। Yes, Vinita. यस मैम। Okay, write in chat. Is I'm audible or not? Yes, class, I will teach you machine learning. Yes, Vinita, voice break हो रही है. Okay. Okay, now start with your subject. Your subject is machine learning. First of all, you all have the syllabus of machine learning. Total 6 modules are here for the machine learning subject. Let's see first of all the syllabus. See, these are the various types of machine learning, first of all, that you have to study in detail. That is supervised, unsupervised learning. And your module 3 and module 4, the most important है आपका यहाँ पे, that is the first two modules. तो आपके सब्जेक्ट में तो यूज होंगे, प्लस आगे भी अगर फ्यूचर में आपको इस पे वर्क करना है तो आपके ये जो एल्गोरिदम्स है यहाँ पे, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स, that will be used in your future also. ठीक है. After that, the two modules, that is module 3 and module 4, जिसमें आप कंप्लीट लर्निंग स्टडी करेंगे, लर्निंग टेक्निक स्टडी करेंगे, जो भी हम मशीन लर्निंग में अप्लाई करते हैं. जैसे कि हम स्टेटिस्टिकल लर्निंग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो टूल्स क्या है, वो मॉडल्स क्या है, वो आप मॉड्यूल 3 में स्टडी करेंगे. ठीक है. आफ्टर दैट सेम यहाँ भी आपका लर्निंग ही है, बट इट रिलेट्स टू द डीप लर्निंग टेक्निक्स.
And last two modules, that is module 5 and module 6. 6 is what only though you have to study about the recent trends, or you can say the applications of machine learning, where we can apply or use the machine learning techniques. And in module 5, you will study about this online and distributed learning technique. Just I mean to say here that you have to learn the machine learning subject in detail, the types of machine learning, and in addition to the types of machine learning, you have to also study about the deep learning. ठीक है, तो यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग है, विद दिस सब्जेक्ट आपको दोनों ही टॉपिक यहाँ पे कवर करना है, दैट इज मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग. ठीक है, बिकॉज आपके सिलेबस में जो लास्ट आपके मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 4, 5, 6, दैट आल्सो इंक्लूड द डीप लर्निंग. ओके, so now let us start with the basic of machine learning. So this is a syllabus, आप सबके पास है syllabus, इसको आप अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे स्टडी करना है सिलेबस. ठीक है, और जो बुक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ. See, within one book you can't स्टडी ऑल दीज मॉड्यूल्स, यानी कि एक ही बुक पे आपको ये सभी मॉड्यूल्स नहीं मिलेंगे. ऑब्वियसली आपको डिफरेंट बुक्स का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे सभी मॉड्यूल्स को स्टडी करने के लिए, या फिर आप और डिफरेंट सोर्सेज नेट के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं. एक बुक में आपको सारा सिलेबस नहीं मिलेगा. ठीक है, बट जो आपका ये एल्गोरिदम्स है, जो एल्गोरिदम्स के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, दैट विल बी, आई एम गिविंग यू 3 बुक्स हियर, नेम ऑफ द 3 बुक्स. ठीक है, that is first of all the elements of machine learning, or and here the author name, this is the book name, title of the book, Elements of Statistical Learning, and its author name is TRF, that is Trevor, Robert, and Friedman. These are the author name for this book. In this, you will get the learning algorithms like your linear regression, clustering, and all other algorithms. Second book that you can prefer also, that also include the algorithms, that is, the title is the machine learning, and here the author name is the book name is the machine learning, and its author is Tom M. Metcalf. This is also the machine learning book that you need to prefer to study the algorithms of machine learning. Okay, and last, for the lab, you can prefer this So right now here I'm giving the name of 3 books, these 3 books that you need to study, okay, for your machine learning subject. First is the Elements of Statistical Reasoning or Learning by the Trevor, Robert, and Friedman. Next, only the name here is the Machine Learning by Tom and Metcalf. You can prefer this second book because it consists of many algorithms. And last is, this is the Python Machine Learning that for the lab by SNV, आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो, सेबेस्टियन एंड वही. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर्स. ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, नेट का सोर्स चाहिए आपको, और डिफरेंट मेरे जो नोट्स होंगे आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज द
supervised machine learning. So before that, first of all, learn basic about the machine learning. So what is machine learning is, Vinita and Nishi, can anyone of you tell me what is machine learning? What is machine learning? So machine learning is what? There are various definitions for this machine learning. The basic definition is what? That it is a field of study that gives computers or the systems the capability to learn without being explicitly programmed. Okay, that is what the machine learning. क्या है machine learning? It is the field of study This is what the machine learning. Its aim is to give capability to all the computers or to all the systems to learn without being explicitly programmed. यानी कि यहाँ पे क्या है, two terms है जो कि important है क्या? First of all, it gives computers the ability to learn, okay, and secondly, there is no programming on that computer or on that system. ठीक है, एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग या एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है? जैसे अभी तक आपने जो प्रोग्राम्स करते हैं, आपने कोई भी लैंग्वेज स्टडी की है, जैसे सपोज सी है, C++ है, या फिर हमारी जावा है, उसमें हम क्या करते हैं? सपोज यू वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, आप जस्ट क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे अगर आप जावा कर रहे हैं तो आप जावा का कोड वहां पे लिखेंगे. कोड किस फॉर्म में होता है? इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में होता है. देयर आर अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच मेक अ प्रोग्राम. आपने वो इंस्ट्रक्शंस दी कंप्यूटर को, एंड आफ्टर दैट आप उसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं. एट द रन टाइम आप इनपुट देते हैं, बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस जो हमने एक प्रोग्राम की फॉर्म में कंप्यूटर को दिया है, उस पे बेस्ड वो हमको आउटपुट दे देते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग. बट यहाँ पे मशीन लर्निंग क्या कह रहा है कि नो, वी डू नॉट नीड टू यूज दिस एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग. एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग मतलब कि हमें कंप्यूटर को इस तरह से एक प्रोग्राम लिख के इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है कि इंस्ट्रक्शंस हमने दी है, उसके बाद हम इनपुट देके उस पर आउटपुट चेक कर रहे हैं. हम क्या चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है, हमारा जो सिस्टम है, वो खुद से ही लर्न करे और बेस्ड ऑन दैट लर्निंग एक्सपीरियंस वो हमको आउटपुट प्रोवाइड करे. ठीक है, सो जो मशीन लर्निंग होती है, मेन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे कि वो कंप्यूटर्स को ऐसा बनाना चाहता है, ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहता है जो कि खुद से लर्न कर सके, उनके पास कैपेबिलिटी हो लर्न करने की, एंड आफ्टर दैट विद दिस दैट लर्निंग एक्सपीरियंस वो क्या दे सके, यूजर्स को आउटपुट दे सके. और वहां पे किसी भी तरह की प्रोग्रामर का यूज नहीं होगा. ठीक है, एक्सेसिवली प्रोग्राम मतलब टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर एंड बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर विल give you the output. But here your machine learning concept want that computer will learn by itself. ठीक है, and based on that learning experience it will give us the output. Okay, next here for example, simple example देखो यहाँ पे, जैसे आप सब करते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे आप अमेजोन पे कर रहे हैं, मीशो पे कर रहे हैं, किसी भी ऐप पे आप यूज कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग, तो वहां पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम कुछ सर्च करते हैं, कुछ भी आपको अगर परचेज करना, लाइक सपोज आपको अपना लैपटॉप परचेज करना है, अपने लैपटॉप के लिए वहां पे सर्च किया. नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसको ओपन करेंगे उस ऐप को, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी आपने फर्स्ट टाइम सर्च किया है उससे रिलेटेड आपको सारा डेटा वो विजिबल होगा. ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है? सब मशीन लर्निंग की हेल्प से हो रहा है. यहाँ पे आपको पता है कि ओवर द वर्ल्ड देयर आर मिलियन ऑफ यूजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऐप. वहां पे ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक यूजर के लिए हर एक प्रोग्रामर वहां पे होगा कि जो कि उनकी क्वेरीज को चेक करेगा, एंड आफ्टर दैट बेस्ड ऑन दैट क्वेरी नेक्स्ट टाइम वो उनका वही रिजल्ट देगा. नो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मशीन लर्निंग यूज की जाती है, जहाँ पे क्या है कि सिंपली जो फर्स्ट टाइम यूजर ने सर्च किया, जो भी डेटा उसको सर्च करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी आपके सिस्टम में. आफ्टर दैट बेस्ड ऑन दैट फीडेड इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है, वो सेम जो भी हमने सर्च किया था डेटा, उससे रिलेटेड न्यू डेटा हमको प्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस मशीन लर्निंग. इट इज ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग अगर हम करते हैं तो वो हमको हमारी सर्च से रिलेटेड डेटा प्रेजेंट करता है. वो किस हेल्प से होता है? वो एक मशीन लर्निंग के कंसेप्ट की हेल्प से
प्रोवाइड होता है, ठीक है। देखते गो, what is its aim? What is the aim of this machine learning? Aim is to minimize the errors between expected and actual output. मशीन लर्निंग का एम क्या है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है और जो एक्चुअली में हमको मिली है उनके बीच के एरर्स को, या फिर हम कह सकते हैं उनके बीच के डिफरेंसेस को कम करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल इट, second, first of all see second aim also to overcome the limitations of traditional programming. Traditional programming अभी जो मैंने आपको बताया that is explicit programming, जहाँ पे प्रोग्रामर सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन जो भी हमने उनको दिया है इनपुट, हमको आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। तो टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और सिंपली टू रिमूव द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वी यूज अ मशीन लर्निंग कंसेप्ट, ठीक है। तो मेन अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो फॉर एग्जाम्पल suppose this is a system who is working based on this concept machine learning. Okay, now what happens with this machine learning? This is the second phase here is the program logic, or you can also write here model. And this phase is the testing phase. And here at the initial point, that is there are two arrows, first for the input and second for the output. Okay, now with this machine learning concept, you have to feed the data into the machine. Feed the data into the machine means you have to train the data, train the machine, sorry. So machine को train करने के लिए, उसको training data provide करने के लिए हमें क्या चाहिए? What we require here? We require both the input and the output. ठीक है, हमें क्या करना है, किसी भी सिस्टम पे एक मशीन लर्निंग कंसेप्ट अप्लाई करना है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोवाइड दैट मशीन विद बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटा सेट बोलते हैं या फिर ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। ट्रेनिंग डेटा मतलब वो डेटा जिसकी हेल्प से हम किसी मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारा इंफॉर्मेशन, सारा कंप्लीट डेटा, जिसपे बेस्ड वो लर्न करेगा एंड विद दैट लर्निंग एक्सपीरियंस वो हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ इनपुट एंड आउटपुट हमें सिस्टम में फीड करना होगा, यानी कि जैसे हम क्या करते हैं, हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। आपको कोई सब्जेक्ट स्टडी करना से मशीन लर्निंग ही है, वहां पे आप क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं,
and this is suppose this is question 1 and related to this question 1 you have answer 1, यानी कि आपको पता है अगर ये क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 से रिलेटेड मुझे आंसर करना है क्वेश्चन A1, ऐसे क्वेश्चन 2 से रिलेटेड मुझे क्या करना है A2, एंड सेम लाइक क्वेश्चन 3 से रिलेटेड हमारे पास क्या है A3। कहने का मतलब क्या है कि हमारे माइंड में क्या है, ये फीड होता है। अगर हम प्रिपेयर करें अपने एग्जाम के लिए कि अगर मेरे पास ये टॉपिक आता है, ये कंसेप्ट है, तो मुझे इसका ये आंसर करना है। सिंपल, बोथ हमारे पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज है उसके बाद हम अपना पेपर जो है, अपना एग्जाम जो है अटेम्प्ट करते हैं। सेम यहाँ पे है आपका क्या, हमें क्या करना है, किसी भी मशीन को बोथ इनपुट एंड आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। नाउ इनपुट एंड आउटपुट जब हम किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग दैट इनपुट एंड आउटपुट, वो क्या क्रिएट करता है, एक मॉडल क्रिएट करता है, एक ट्रेनिंग मॉडल, या फिर हम उसको प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या लॉजिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है यहाँ पे सेम टर्म से। कब क्रिएट होगा, जब हम किसी भी सिस्टम को दोनों ही प्रोवाइड करेंगे, क्या, इनपुट भी और आउटपुट भी। ओके, आफ्टर दैट जब इसके कॉम्बिनेशन से, इनपुट एंड आउटपुट के कॉम्बिनेशन से आपका सिस्टम क्या क्रिएट करेगा, एक लॉजिक क्रिएट कर लेगा, एक ट्रेनिंग मॉडल क्रिएट करेगा। उसके बाद हम इस मॉडल को चेक करेंगे फॉर द न्यू इनपुट्स, यानी कि ओरिजिनली जो हमने इनपुट प्रोवाइड की थी वो, तो जैसे सपोज यहाँ पे आपने 3 इनपुट इस सिस्टम पे प्रोवाइड किया और 3 इनपुट्स रिलेटेड हमने यहाँ पे इसको 3 आउटपुट्स प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास ये इनपुट है तो मेरी आउटपुट प्रोड्यूस होगी, सिस्टम ने अपने आप एनालिसिस कर लिया, जिससे कि उसने क्या क्रिएट किया, एक ट्रेनिंग मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद क्या आता है आपका टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में क्या टेस्ट करना है हमको, हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो इनपुट्स हमने यहाँ पे दिए इससे रिलेटेड ही हम इनपुट इसको फर्दर इस पे अप्लाई करेंगे। एंड आफ्टर अप्लाइंग दैट इनपुट ऑन दिस सिस्टम, हमें चेक करेंगे कि वो आउटपुट क्या दे रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इनपुट 1 अप्लाई किया, बेस्ड ऑन दैट इनपुट 1 आपके पास आउटपुट है इधर, दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल ओवर। ठीक है, नाउ जब ये कंप्लीट ट्रेनिंग मॉडल क्रिएट हो गया, आफ्टर दैट हमने इसको टेस्ट किया कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, जिस फंक्शन के लिए हमने इसको डेवलप किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, हम क्या करते हैं, सिंपली इस पे इनपुट्स अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया I1 ऑन दिस ट्रेनिंग मॉडल। सो अगर ये I1 की जो आपको आउटपुट दे रहा है दैट इज O1, क्योंकि हमने O1 ही फीड किया था यहाँ पे इसके अंदर, इनपुट I1 से रिलेटेड जो आउटपुट हमको मिलेगी दैट विल बी द O1। सो इफ I will get this O1, इट मीन्स जो हमारा ट्रेनिंग मॉडल है, ये जो हमने मशीन लर्निंग एक सिस्टम क्रिएट किया है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं है, यानी कि इनपुट 1 से रिलेटेड हमको कोई और आउटपुट दे रहा है, ये जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है, सो इट मीन्स जो आपका सिस्टम आपने जो डेवलप किया है दैट इज नॉट परफेक्टली ट्रेंड। तो यही यहाँ पे आपका ऊपर मैंने लिखा था अभी, एम टू मिनिमाइज एरर्स बिटवीन, और यू कैन ऑल्सो राइट हियर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्या है, जो हमारे पास आ रही है, और एक्सपेक्टेड जो है, जो हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे को पता था, मैंने I1 के लिए O1 इनपुट और आउटपुट यहाँ पे सिस्टम में फीड किया है, तो जब मैं इसको टेस्ट करने के लिए I1 इनपुट दूंगी तो मुझे O1 ही इनपुट वहां पे रिसीव होना चाहिए। तो इट मीन्स दोनों जो होगा हमारा, एक्सपेक्टेड भी और एक्चुअल आउटपुट दोनों ही सेम रहेगी। बट अगर वो O1 के अलावा मुझे कोई और आउटपुट दे रहा है, चाहे वो इसके अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू हो, बट वो एक्चुअली में जो हमने चाहा था, कि जो हमें एक्सपेक्टेड थी, वो हमको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो ये आपका एम रहता है कि हमारी जो आउटपुट रहेगी वो सेम होनी चाहिए, या फिर नियरेस्ट होनी चाहिए टू द एक्सपेक्टेड आउटपुट, उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, मशीन लर्निंग एक सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम में हमको दोनों ही फीड करना है, इनपुट भी और आउटपुट भी। वो इनपुट आउटपुट जो हम सिस्टम में फीड करते हैं, आफ्टर दैट सिस्टम जो है बाय इटसेल्फ उसको लर्न करता है, कि उसकी एनालिसिस करता है। आफ्टर दैट एनालिसिस वहां पे क्या क्रिएट होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, एक ट्रेनिंग मॉडल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम उसको टेस्टिंग फेज में लाते हैं, हम उसको टेस्ट करते हैं। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग सम इनपुट्स। इनपुट प्रोवाइड करने के बाद एट द एंड क्या चेक होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल आउटपुट। और हमारा एम क्या है कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, या तो सेम ही हमें मिले एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटपुट, जो हमने चाहा है वही हमको एज अ रिजल्ट मिले, अदरवाइज इट मे बी द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्सपेक्टेड आउटपुट, बट लॉट्स ऑफ डिफरेंस वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका हो जाता है, इट मीन्स जो हमने सिस्टम क्रिएट किया है, जो सिस्टम हमारी इनपुट और आउटपुट पे बेस्ड लर्निंग कर रहा है, दैट इज नॉट परफेक्टली implemented. Okay, so this is the concept of your machine learning. Okay, now see in hierarchy for this, there is a hierarchy
What is that? First of all, so to explain the basic concept of this machine learning, there are two phases. हम इसको mainly divide करते हैं two phase. The name of this first phase, तो first phase रहता है आपका, that is the training phase. It is known as the training phase. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज द टेस्टिंग फेज. सो टू फेजेस है जिसकी हेल्प से आप मशीन लर्निंग कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं. इन द ट्रेनिंग फेज आपको क्या करना है, सिंपली मॉडल को ट्रेन करना है, यानी कि सिस्टम को ट्रेन करना है, सिंपली सिस्टम को नॉलेज प्रोवाइड करनी है. ठीक है, और वो उस नॉलेज की जो एनालिसिस है वो बाय इटसेल्फ ही परफॉर्म करेगा. एंड आफ्टर दैट टेस्टिंग फेज में हमें जस्ट वो टेस्ट करना है कि वो हमको हमारी इनपुट पे क्या आउटपुट दे रहा है. और एम क्या है कि हमारा जो आउटपुट आती है दैट इज द एक्चुअल आउटपुट जो हमें रिसीव होगी और जो एक्सपेक्टेड है उनके बीच में डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल there is an hierarchy that is that I am talking about, that is first layer is the artificial intelligence. Next here is the machine learning. And the last lowest here is the deep learning. ठीक है, so hierarchy आपको क्या बता रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, at the highest level you have the AI, artificial intelligence. Now in the second layer that is the machine learning. So machine learning is what? Machine learning here is a subset of AI. यानी कि जो हमारा मशीन लर्निंग एग्जांपल्स है, जितने भी हम मशीन लर्निंग एग्जांपल स्टडी करते हैं या एल्गोरिथम स्टडी करोगे, दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस एआई. व्हाई? क्योंकि मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड आप कह सकते हैं, या फिर सबसेट ऑफ दिस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, मशीन लर्निंग के भी लोवेस्ट अगर हम वो डीप में चले जाते हैं, दैट इज व्हाट दी डीप लर्निंग. अब डीप लर्निंग क्या है यहाँ पे? डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ दिस मशीन लर्निंग. Or here you can say both the machine learning and the deep learning are the subfields of the but AI, artificial intelligence. ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे प्रैक्टिकल बायोमा में भी आपसे पूछ सकते हैं दैट मशीन लर्निंग क्या है? एआई का सबसेट है. एंड डीप लर्निंग जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. और यू कैन से बोथ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई. ठीक है, सो among these three, artificial intelligence, machine learning and deep learning, तीनों का ही आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए तीनों में आप क्या वर्क परफॉर्म करते हैं, क्या डिफरेंस इन तीनों में आपका रहता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द एआई इज artificial intelligence that's aim is to develop the machines that can act and work like humans. एआई का एम हमें पता है क्या है. एआई का एम क्या होता है? ऐसे सिस्टम बनाना, ऐसे कंप्यूटर बनाना जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही एक्ट कर सके, उन्हीं की तरह काम कर सके. जैसे रोबोट है, सबको पता है रोबोट क्या है. एन एग्जांपल ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बेस्ड ऑन द फीडेड डेटा ह्यूमन की तरह क्या करता है? एक्ट करता है, ह्यूमन की तरह वर्क करता है. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म was came into existence in the year 1956. Okay, and who developed this theory, artificial intelligence? John McCarthy. Who introduced this term artificial intelligence? किसने किया था artificial intelligence introduced? John McCarthy person in the year 1956, and whose aim is to develop the machines that can work and act like humans. Simple.
ठीक है। अब जो मशीन्स ह्यूमंस की तरह एक्ट कर सकती हैं, उनकी तरह वर्क कर सकती हैं, उन मशीन्स को हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है। सो फॉर एनी मशीन टू बी कॉल्ड एज एन इंटेलिजेंट मशीन, you know that all the machines have to pass a test that is known as the Turing test. कोई भी मशीन अगर ट्यूरिंग टेस्ट that was proposed by a person named Turing एक पर्सन का नेम है जिनपे बेस्ड ये टेस्ट आपका दिया गया था, that was the Turing test। ये आपको पता होगा आई थिंक, क्योंकि आई में भी आपने स्टडी किया होगा। ट्यूरिंग टेस्ट क्या टेस्ट था? वो टेस्ट जो हर एक मशीन को पास करना था टू बी कॉल्ड एज एन इंटेलिजेंट मशीन। और इंटेलिजेंट मशीन कौन सी है? कि जो कि ह्यूमन की तरह बिल्कुल वर्क कर सकती है। ठीक है। तो उनको क्या पास करना था? ट्यूरिंग टेस्ट। और उसमें क्या था? सिंपली जिसका एम क्या था कि मशीन अगर या फिर हम ह्यूमन बीइंग अगर ये डिटेक्ट नहीं कर पाते कि मशीन कौन सी और ह्यूमन कौन सी, सपोज हमने क्या किया, एक क्विज अप्लाई किया 2 रूम्स में, आपने पढ़ा होगा ये टेस्ट। 2 रूम्स है जहाँ पे कि आपका एक मशीन है और एक रूम में ह्यूमन है, एंड अनदर वन इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग जो कि क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन ने क्वेश्चन किया, दोनों ही रूम से उसको रिप्लाई मिली। अगर वो डिटेक्ट करने में फेल हो जाते कि कहाँ से आपको मशीन की रिप्लाई आ रही है और कौन से रूम से आपको ह्यूमन की रिप्लाई आ रही है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, तो इट मींस वो मशीन क्या है? एक इंटेलिजेंट मशीन है और उसने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया। ठीक है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या था? कि सिंपली मशीन जो है अपनी आइडेंटिटी बताए, मतलब अपनी आइडेंटिटी को नहीं बता सके किसी भी ह्यूमन बीइंग को, दैट इज अ इंटेलिजेंट मशीन। यानी कि कोई ह्यूमन जो है वो ये डिटेक्ट ही ना कर पाए कि वो मशीन से कम्युनिकेट कर रहा है या फिर ह्यूमन से। सो दैट इज व्हाट द ट्यूरिंग टेस्ट, और जो कि हर एक मशीन को पास करना था टू बी कॉल्ड एज एन इंटेलिजेंट मशीन। और वो क्या होती है? जो कि एआई का एम है आपका कि हमें ऐसी मशीन्स बनानी ही है कि जो ह्यूमंस की तरह काम कर सके या फिर एक्ट कर सके। ओके। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे आता है एमएल। एमएल जो है मेनली ये भी आपका एआई को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि दैट्स व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ एआई। एआई की सबसेट ही है ये। बट यहाँ पे क्या है आपका एमएल के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं होगी, एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं होगी। इट मींस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे कोई प्रोग्रामर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है। एमएल जो है देयर इज नो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। अभी डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था, ये भी कंप्यूटर को ऐसा बनाती है कि जिससे कि वो लर्न कर सके, खुद से लर्न कर सके, और वहां पे आपकी कोई भी प्रोग्रामर या फिर एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं यूज की जाएगी। हम क्या करेंगे? इनिशियली सिस्टम में डेटा फीड कर देंगे, बेस्ड ऑन दैट डेटा जो हमने उसमें फीड किया है वो लर्न करेगा, एंड आफ्टर दैट बेस्ड ऑन दैट लर्निंग एक्सपीरियंस वो हमको अप्लाइज करेगा। ठीक है। दैट इज व्हाट द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो टर्म थी आपकी, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस और इंट्रोड्यूस्ड in the year 1959 by the person named Arthur Samuel. This is the name of the person, ठीक है, who introduced this term that is machine learning। और ये क्यों आई थी, क्यों यूज की गई थी मशीन लर्निंग? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो है, एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, उसको रिमूव कर सके, और सेकेंडली जो भी हमारा गैप रहता है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटपुट का, उसको मिनिमाइज कर सके। ओके। नेक्स्ट इज द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज the lowest is at the lowest level, that is also subset of this machine learning. So here what is this deep learning? First of all, it came into existence in the year 2000 by the person named Igor Agenberg. This is the name of the person who introduced this term deep learning. In which year? In the year 2000. Okay. So all of you need to study the differences between these 3 concepts: AI, machine learning, and deep learning. First of all, the year and the name of the person, that is 1956, 59, and 2000. Secondly, who developed these terms, that is John McCarthy for AI, machine learning by Arthur Samuel, and deep learning by Igor Agenberg. Clear? Now what is it? AI का aim क्या है? To implement or to develop the machines that can work and act like humans. Simple. Machine learning क्या है? It provide computers the capability to learn by itself, ठीक है, without explicitly program. And third here is the deep learning. Now deep learning क्या है? क्या purpose है deep learning का? Is to develop algorithms that are inspired by the structural and functional behavior of human brain.
जो हमारा डीप लर्निंग होती है ये क्या है, ये वो एल्गोरिदम्स प्रोड्यूस करती है या वो एल्गोरिदम्स को यूज करती है जो कि इंस्पायर्ड हुए हैं बाय द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यानी कि अगर आपने न्यूरल नेटवर्क स्टडी किया हुआ सब्जेक्ट, तो न्यूरल नेटवर्क में क्या था, आपको कैसे क्रिएट हुआ था, वो कैसे इंस्पायर हुआ है न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो सेम यहाँ पे है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग भी आपका ह्यूमन ब्रेन के इंस्पायर होके एल्गोरिदम्स क्रिएट किए हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ओके, सो डीप लर्निंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस to create different algorithms। पर्पस तीनों का ही सेम ही है कि हमें क्या करना है, कंप्यूटर्स जो है उनको ह्यूमन की तरह वर्क करवाना है, लेकिन जो मेथड है वो तीनों में आपका सेपरेट यूज होगा। so to create algorithms that are inspired by the structure of human brain or structure and function of human brain। Clear? So this is the aim of deep learning. Now for machine learning and deep learning, see an example that अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग में क्या है, सिंपली दिस इज सपोज दिस इज अ सिस्टम, ठीक है, हियर मशीन लर्निंग कंसेप्ट इज यूज्ड। नाउ हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने क्या किया, मशीन को, एक सिस्टम को एक नॉलेज दी, यानी कि वहां पे डेटा फीड कराया। वो डेटा क्या है कि उसको रिकॉग्नाइज करना है सिस्टम को कि अगर हम उसको जो भी इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसकी है। हम एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे सपोज कोई सिस्टम है, जैसे कि वो कैट है या फिर डॉग है, तो वो हम कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ सिस्टम में इनके फीचर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो बेस्ड ऑन द फीचर्स जो भी इसमें फीड होगा, जैसे कि कैट के फीचर्स क्या है या डॉग के फीचर्स क्या है, दोनों के फीचर्स यहाँ प्रोवाइड होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसके सामने हम एज एन इनपुट देंगे कैट या फिर डॉग, तो अपने फीचर्स को लर्न करने के बाद वो उसको बता सकता है इजिली कि वो कैट है या फिर डॉग। ठीक है, डीप लर्निंग में क्या होगा, हम फीचर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। डीप लर्निंग में हम जस्ट इमेज जो है उसमें सिस्टम में इंप्लीमेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब हम उसको इनपुट देते हैं कोई अनदर इमेज, तो वो बेस्ड ऑन इट्स नॉलेज जो उसमें अंदर फीड है, जो इमेज फीड है, बेस्ड ऑन दैट वो आपको आंसर कर सकता है। ठीक है, अभी टाइम अप होने वाला है, तो इस कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा से आपको बताऊंगी एग्जाम्पल को। तो ये वाला आपका कैट डॉग का, ठीक है।